Yes, ma'am. मैंने हाफ कर दिया हाफ. क्या? मेरिट से बचा हुआ था मैम, यहाँ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ. ठीक है, जल्दी करिए. Waiting. Good afternoon, everyone. Now, merit of joint stock company. The first one is limited liability. Second one is transferable interest. Third one is perpetual existence. Fourth one is larger amount of capitals. Fifth one is efficient management. Now, first, limited liability. As I said earlier, the liability of every person is limited to the nominal value of share bought by him. Means that they are only liable for the share that he or she bought. No member can liquidate their personal asset to pay the debts of a firm. Means personal property safe रहती हैं. Now, second one is transferability of shares. You can easily sell the shares. When you required money, you can convert the share. You can convert the share into cash. Means that when you think that your share is down, you can easily you can easily sell the share, and whenever you required money, you can convert capital share into cash. Third one is perpetual succession. I have told you before that it means that death, retirement, insanity, does affect life of company. Member come and go, but the company goes on until it is wound up. Means a company does not member make the company till it is wound up. Third one is larger amount of to issuing the share to the general public. Means that the company कंपनी अपने शेयर के प्राइस को कम कर देती है, so that the larger amount of people can invest, can vote and invest in their company. Fifth one is efficient management. Because they have larger amount of capitals, they can hire proficient, talented people in board of directors. Means that they have certain amount of capital, so they can hire the talented people in their management. So and now we look at the limitation of joint stock company. The first one is complicity in formation. Second one is lack of secrecy. Third one is numerous regulation. Fourth one is delay in decision. Fifth one is nepotism. First, the complicity in formation. It is complex and lengthy procedure for its formation. That means you have to go through a lengthy process like registration, document submission, certificate of commencement, etc. So it takes a lot of time to formation of a joint stock company. Second one is lack of secrecy. According to the Company Act 2013, all public company to provide their financial report and other related document to the registrar. Documents are then public document which any member of public can access. This lead to a lack of secrecy for the company. Means that the कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो वो सबको उनकी पर्सनल वेबसाइट पे देना पड़ता है. तो ये क्या कहते हैं, दिस लीड टू अ लैक ऑफ सिक्रेसी फॉर द कंपनी. Third one is numerous regulation. To run a company, you have to follow lots of rule and regulation, and even during its day-to-day functioning, a company has to follow numbers of law, account paper maintenance, etc. तो एक कंपनी रन करने के लिए अगर वो दिन के भी हिसाब से उनको बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं. पहले मैंने बताया था कि उनको मेंटेन करना पड़ता है अपना वेबसाइट. तो उनके लिए बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं एक कंपनी को, जॉइंट स्टॉक कंपनी को रन करने के लिए. Fourth one is delay in decision. Company has to follow scalar change, so approval to be obtained at different level, different department before a final decision can be taken. So certain
अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है एंड स्केलर चेन यानी लॉट्स ऑफ पीपल से कंसल्ट करना पड़ता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो इट टेक लॉट ऑफ टाइम, सो इट मेक डिले इन डिसीजन. Fifth one is nepotism. Director and managing agent may appoint their own relative as the important officer of the company interest. Merit may be not given importance. So that the management और जो भी HOD वहाँ के हो तो वो अपने ही फैमिली मेंबर के कोई भी रिलेटिव को अपॉइंट कर सकते हैं, जिसमें मेरिट हो सकता है मेरिट को इम्पोर्टेंस नहीं मिले, जितना वो मेरिट भी ना रहे लेकिन फिर उनको हायर कर लिया जाता है. Now it's conclusion. So a joint stock company is artificial person having independent legal entity. The company stock can be bought and sold by the shareholder, and the capitals of the company is generally divided into shares, which is easily transferable. The liability of every person is limited, and the company life goes on. It does not depend upon the member. So conclusion is that the joint stock company is artificial legal entity, means that it is only visible in a eye of law. Having a independent legal entity means that it can be sued. The company stock can be bought and sold by the shareholder, means that any shareholder can bought the new share and sold a share whenever he wants. And the capitals of company is generally divided into a share which is easily transferable, means that the capital of share is divided into a small share which is easily transferable. The liability of every person is limited and the company life does not depend upon the member's life, means that the liability of every person is limited, and the life does means and the company life does not depend upon the member's life, means that the company life depend करती है member life से, तो वो company चलती रहेगी अगर member आते जाते रहे. Thank you. Good, Sakshi. Okay, all right, everyone. Today I am going to explain a very short unit of business environment and joint stock companies. In joint stock company, first of all, we discuss what is sole proprietorship. Actually, if we talk about the sole proprietorship means where सोल प्रोप्राइटरशिप हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसको कहते हैं जहां पे ऑन कंट्रोल और मैनेज सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के द्वारा होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं 1% कंपनी होती है जहाँ पे एक आदमी जो होता है वो अपनी कंपनी को ऑन भी करता है, कंट्रोल भी करता है और कहीं ना कहीं वो आदमी जो होता है वो मैनेज भी करता है. ये एक्चुअली देखा जाता है कि ये जो होता है वो सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जहाँ पे छोटे बिजनेसेस होते हैं. अगर हम बात करेंगे लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की तो वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है. फिर यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि फिर यहाँ से इसका जॉइंट स्टॉक कंपनी से लिंक क्या है. ऑब्वियसली बात है कि जब कोई आदमी सोल प्रोप्राइटरशिप करेगा तो वहाँ पे उसका सारा सिंगल यूनिट लगेगा क्योंकि वो सिंगल आदमी है, उसका इन्वेस्ट सारा लगेगा. ऑब्वियसली बात है कि सिंगल आदमी जो है वो अपना सारा फाइनेंस अपनी तरफ से नहीं दे सकता. उसी के लिए किसका फॉर्मेशन हुआ था? जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही आदमी सब कुछ होता है. अगर वो फाइनेंस करेगा तो वो उसका होगा, क्या उसका आइडियाज होगा उसका होगा, क्योंकि वो ऑन कंट्रोल और मैनेज वो आदमी जो होगा वो खुद करेगा. इसीलिए वो सारा फाइनेंस खुद की तरफ से तो नहीं लगा सकता. इसीलिए जो होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन हुआ. अब हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है. जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है एक कंपनी होता है जहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, अपना हाथ मिलाते हैं और जहाँ पे कंपनी को एक लीगल स्टेटस दिया जाता है, जहाँ पे कंपनी को पहचान दिया जाता है. अगर आपको याद होगा तो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी हमने पढ़ा था जब वहाँ पे 4 प्रोसेस था, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सेकंड स्टेज था. तो इनकॉर्पोरेशन में जब रजिस्ट्रेशन होता था तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंपनी को लीगल स्टेटस दिया जाता था, जहाँ पे कहा जाता था कि कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग है. कंपनी को ना उसके मेंबर से कोई मतलब है ना कंपनी कुछ भी शेयर इशू करेगी या कोई भी एसेट होगा या कोई भी लायबिलिटीज होगा तो कंपनी किसके नाम पे करेगी? अपने नाम पे करेगी.
तो यहाँ कहा जाता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है वो एक कंपनी होता है जहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग आके हाथ मिलाते हैं, जहाँ पे कंपनी को एक लीगल स्टेटस दिया जाता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप समझ गए, जहाँ पे एक आदमी ऑन करेगा, सिर्फ एक आदमी कंट्रोल करेगा, एक आदमी मैनेज करेगा। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो मान के चलो आशीष ने कोई कंपनी खोला, सोल प्रोप्राइटरशिप मान के चलो कि उसने कोई शॉप खोला, तो अगर वो उसको शॉप को खुद ही ऑन कर रहा है, अगर वो उस शॉप को खुद ही कंट्रोल कर रहा है, अगर वो उस शॉप को खुद ही मैनेज कर रहा है, तो वो उसका क्या हो जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। अब इसकी बात है, मैंने बोला है कि ये सिर्फ स्मॉल बिजनेस के लिए होता है, बट लार्ज बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स के बारे में। इसका सबसे पहला फीचर जो है वो है, yes, the first feature is formation and closure। अगर हम फॉर्मेशन और क्लोजर की बात करेंगे तो सबसे जिसका पहला इंपॉर्टेंट होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे हम कंपनी खोलते हैं तो देखते हैं कि इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रेशन जब कंपनी खुल जाती है तो उसमें इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस होता है, इसके बाद जब कंपनी बंद करने का होता है तो वाइंड अप प्रोसेस होता है, तो काफी लंबा चौड़ा होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में तो ये इजी होता है, इसमें ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं होता है। आप कंपनी खोलो, 30 दिन के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, रजिस्ट्रेशन जैसे कराओगे आपका जो है वो वहाँ पे सिम नंबर मिल जाता है। अगर आपने याद होगा फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था सिम नंबर। सिम का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि 21 अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। और ये सिम नंबर क्या होता है, आधार कार्ड पे देखा होगा, आधार कार्ड का एक नंबर होता है, तो वो कंपनी का आधार कार्ड होता है ये सिम। बात करेंगे कि कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, तो कंपनी को एक नंबर दिया जाता है जिसको हम 21 अल्फा न्यूमेरिक नंबर कहते हैं। इसी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद कंपनी जो होती है वो इसी नाम से जानी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिम नंबर कहते हैं। वो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी जिसका पीपीटी है, अगर वो बताएगा तो वहां पे देख लेना। तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर की बात करेंगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है कि ऑब्वियसली बात है कि ऑन कंट्रोल और मैनेज सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के हाथ में होता है। तो फॉर्मेशन और क्लोजर का इसका प्रोसेस जो होता है वो काफी ज्यादा इजी होता है। आप हार्डली जो होता है वो 30 दिन तो कंपनी खोलो और 30 दिन के अंदर अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन आप करवा लो। तो इसका क्या था, पहला। फिर दूसरा हम बात करेंगे इसके लायबिलिटीज के बारे में। इसकी लायबिलिटी जो होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, वो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी जो होती है वो होती है अनलिमिटेड। अब बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज के बारे में। हमने पढ़ा था कि लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कहने का मतलब क्या, ऑब्वियसली बात है कि अगर उसने जो है वो सिंगल पर्सन अगर कोई इन्वेस्ट करेगा, कंपनी खोलेगा सोल प्रोप्राइटरशिप, तो ऑब्वियसली बात है उसको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। या तो फाइनेंस, या तो वो अपने पास जो होगा पहले उसके पॉकेट में जो फाइनेंस होगा वो पहले अपना फाइनेंस इन्वेस्ट करेगा। अगर उसको वहां से भी नहीं हो जा रही है तो ऑब्वियसली बात है या तो वो अपने किसी रिलेटिव से लेगा, फिर अगर उसके फाइनेंस में भी उसको वहां पे कमी पड़ रही है तो क्या करेगा, वो बैंक से लोन लेकर जाके। अब ऐसा तो नहीं है कि बैंक वहां पे पब्लिक का सेवा करने के लिए बैठे, बैंक से लोन लेगा। अगर मान के चलिए उसने 10 लाख रुपए का लोन लिया सोल प्रोप्राइटरशिप खोलने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि एक ना एक दिन बैंक उससे लोन मांगेगा। तो थोड़ी देर के लिए मान के चलिए उसने लोन लिया, उसने अपनी कंपनी खोली, सोल प्रोप्राइटरशिप खोली। कुछ दिन के बाद ऐसा हो गया कि उसकी कंपनी जो थी वो ज्यादा कमाई नहीं कर पाई। उसने जो भी चीज खरीदे थे, बात करें जैसे फर्नीचर लगाए थे या जो भी उसने किए थे, मान के चलिए उसकी वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई। तो ऐसा है कि बैंक से उसने लोन लिया, बैंक को अपना लोन चाहिए या जैसे भी लोन दो। मान के चलिए कि उसने 10 लाख का लोन लिया और उसने क्या किया, उसकी कंपनी जो थी वो 5 लाख की बिजनेस कर पाई, बाकी 5 लाख की बिजनेस नहीं कर पाई। तो ऐसा तो नहीं है कि बैंक बोलेगा कि ठीक है आप 5 लाख दे दीजिए, हम आपको 5 लाख छोड़ देंगे। बैंक तो उससे पूरी 10 लाख लोन लेगी। तो बैंक उससे ऑप्शन आता है कि बैंक क्या करेगी, उससे 10 लाख लोन लेगी। तो सबसे पहले बैंक जो होगी वो इसके इनकम पे जाएगी। तो पहले तो बैंक वहां से पैसे निकलवाने की कोशिश करेगी कि इनकी बिजनेस ने कितना अर्न किया। तो मान के चलिए अगर उनकी बिजनेस से 5 लाख रुपए अर्न किया, तो यहाँ से तो ये 5 लाख का लोन निकलवाने की कोशिश करेगी, 5 लाख। फिर बैंक जाएगी इनके पर्सनल प्रॉपर्टीज पे, पर्सनल प्रॉपर्टी पे जाएगी कि वहां से कुछ निकलवाने की कोशिश करेगी। तो जब आपका लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी हम किसी चीज को कहते हैं कि जब आप कंपनी अपना लायबिलिटीज में जब आपको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेचना पड़ जाए, आपका इसमें होता है कि आपका घर भी बिक सकता है, आपकी प्रॉपर्टी जितने भी होती है वो भी बिक सकती है, सब कुछ बिक सकती है। इसीलिए जो होती है वो इसकी बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की, इसकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर बैंक लोन देगा तो वो लोन उसको चाहिए, वो वहाँ पे जो है वो समाज सेवा करने के लिए तो बैठा नहीं है कि हाँ भाई आप 10 लाख का लोन लेके चले जाओ से आप अपना कंपनी खोलो और आपका कंपनी डूब गया तो मुझे आपसे लोन नहीं चाहिए, जितना बिजनेस करेगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर इसने 10 लाख का लोन लिया है ये आदमी, 10 लाख का लोन, तो बैंक को उसको 10 लाख का लोन वापस चाहिए, चाहे आप जैसे भी हो, चाहे आप अपना पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके दो, चाहे आप ये दो। और ऑब्वियसली बात है कि अगर ये खोलेगा
तो मान के चलिए कि अगर इसकी बिजनेस 5 लाख की बिजनेस करता है तो कंपनी को पूरा 10 लाख करना चाहिए ना। तो क्या कर सकते हैं, इसमें इसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या हो सकती है, सेल हो सकती है। इसी को इसका ये सेंटेंस करिए। दूसरा हो गया, तीसरा हम बात करते हैं सोल रिस्क बेयर। इसकी तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर्स होती है वो होती है सोल रिस्क बेयर। अब ऑब्वियसली बात है कि जैसे हमने बताया जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो जहाँ पे ऑन कंट्रोल और मैनेज सिर्फ एक आदमी के हाथ में होता है, तो ऑब्वियसली बात है सारा रिस्क जो होगा वो कौन लेगा, वही एक आदमी लेगा, क्योंकि दिमाग उसका सारा उसी का होगा, तो सारा रिस्क कौन उठाएगा, उसी का होगा। जो प्रॉफिट होगा वो सारा रिस्क क्या होगा, उसी का होगा। अगर कंपनी के अंदर कुछ रिस्क होता है क्योंकि ऑन कंट्रोल दिमाग सारा उसी का होगा, सिंगल पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है वो एक ही आदमी का, अगर आशीष होता है तो सारा दिमाग आशीष का ही होगा, इसमें कोई दूसरा तीसरा आदमी है नहीं, क्योंकि ये पार्टनरशिप तो है नहीं। तो जितना भी रिस्क होगा वो सारा का सारा रिस्क कौन जिम्मेदार होगा, वो एक सिंगल पर्सन जो होगा वो सारे के सारे रिस्क का जिम्मेदार होगा, इसको सोल रिस्क बेयरर होता है। इसके बाद हाँ वो सारा रिस्क जिला, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ऑन कंट्रोल और मैनेज सिर्फ एक आदमी करता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो अगर कुछ भी होगा तो रिस्क सारा कौन लेगा, वही लेगा ना, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि पार्टनरशिप तो है नहीं कि 2-3 लोग हाथ मिलाए वहाँ पे जो सबका कंबाइंड जजमेंट होगा तो एक ही आदमी का। ऑब्वियसली बात है कि सारा रिस्क कौन बेयर करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी होगा। अगर वो प्रॉफिट होगा तो वो सिर्फ एक आदमी का होगा, अगर वो लॉस होगा तो सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो किसका होगा, एक आदमी का होगा। चौथा होता है हमारे पास कंट्रोल, और ऑब्वियसली बात है कि इसमें कंट्रोल भी किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का ही होगा। ये तीन चीज अगर एक आदमी कर रहे हैं तो वो उसको कंट्रोल भी किस आदमी का हाथ में होगा, वो एक आदमी के ही हाथ में होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में। एक मिनट इसके बारे में बात करेंगे। इसके सॉरी एक और बच जाते हैं, 5वां लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। चौथा लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जब हमने पढ़ा था, जब हम फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जब कंपनी खुलती है वहाँ पे तो कंपनी अलग होती है, उसके मेंबर्स अलग होते हैं, जो हमने सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस में पढ़ा था, हम यहाँ भी पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी में। यानी कि अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कुछ भी हो, अगर डेथ कर जाता है, उसके साथ कुछ हो जाता है, डेथ कर जाए या कुछ भी हो जाए, उससे उसकी कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी फिर भी चलता ही रहेगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सारा काम सिर्फ एक आदमी कर रहा है। अगर वो एक आदमी डेथ कर जाता है तो इसकी कंपनी जो होगी वो बंद हो जाएगी, क्योंकि वहां पे वो कंपनी नहीं है, ये सिर्फ एक ऑन पर एक आदमी ऑन रजिस्ट्रेशन सिंगल पर्सन बिजनेस है। हमने कंपनी में पढ़ा था कि वहां पे कंपनी जो होते हैं वो अलग होते हैं, उसकी नंबर्स अलग होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कुछ भी मर जाते हैं तो ऐसा बात नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, या तो उसको गवर्नमेंट टेकअप कर लेगी या कोई और ले लेगा, लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी। लेकिन अगर बात करें कि सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो यहाँ पे अगर मर जाता है या डेथ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसकी कंपनी जो कि क्या हो जाएगी, बंद होगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के हाथ में सारा का सारा कंट्रोल होता है। हम बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। इसका जो सबसे पहला एडवांटेज है, इसका होता है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग कहने का ये मतलब है कि अगर हम बात करें पार्टनरशिप के बारे में, तो जब हम पार्टनरशिप करते हैं वहाँ पे, जब हम 2-3 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, अगर उसकी बात है तो हम ये सोचते हैं कि हम कुछ सोच लिए और कर लिए, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पे सबका शेयर होता है। और इसके बाद तो हमको सबको दिमाग लेके चलना पड़ता है। हमको जैसे 4 लोगों ने मिलकर किया तो हमको इसका भी सुनना पड़ेगा, उसका भी सुनना पड़ेगा, हम अकेले तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पार्टनरशिप होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो सिंगल पर्सन होता है, तो जितना भी डिसीजन होता है वो सारा का सारा जो होते हैं वो डिसीजन उसका खुद का होता है, इसलिए उसको डिसीजन लेने में जो होते हैं कोई दिक्कत नहीं होती। सारा का सारा डिसीजन जो होता है क्या होता है, वो उनका खुद का होता है, उनके पास पूरी फ्रीडम होती है डिसीजन लेने के लिए। वो बंधे नहीं होते कि नहीं हमको इसका भी डिसीजन लेना है, हमको इसका भी लेना है, हमको इसका भी लेना है, ऐसा जो होता है वो कोई नहीं होता है। और इनके पास जो होता है वो पूरी फ्रीडम होती है डिसीजन लेने के लिए, कि आप जो होते हैं कुछ भी डिसीजन कर सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी करता है सब कुछ, ऑन कंट्रोल और मैनेज होता है वो सिर्फ एक ही आदमी के हाथ में होता है। दूसरा बात करते हैं सीक्रेसी।
सीक्रेसी का मतलब होता है कि जब हम पार्टनरशिप हमने देखा था कि ऐसी बात नहीं है कि पार्टनरशिप हम किसी भी पार्टनर से कोई भी चीज छुपा सकते हैं। अगर आप कुछ करते हैं आपको सबको बता के करना पड़ेगा। आप अगर 4 पार्टनर मिलकर कोई बिजनेस खोल रहे हैं तो अब इसकी बात है कि आपको अपना आइडिया चारों पार्टनर के साथ जो होगा वो शेयर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसा बात नहीं कि इसमें से चारों पार्टनर में से अगर गलती से आपका कोई आइडिया लीक कर दे सकता है, आपकी पूरी की पूरी आइडिया जो क्या हो जाएगी, उसका मेहनत जो होगी वो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर सिंगल कंपनी आदमी सब कुछ ऑन कर रहा है तो यहाँ पे सिक्रेसी जो होता है क्या होती है, ज्यादा मेंटेन होती है। आप जो भी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो आप अपने पास ही रख सकते हैं। फिर इसमें जो सीक्रेसी हो जाए, तीसरा होता है इसका डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो होता है वो अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। अगर आप जो भी कमाई होगी, जो भी आपकी इनकम होगी बिजनेस की, वो सारी की सारी आपकी क्या होगी, अपनी होगी। पार्टनरशिप में अगर आपका जो इनकम होगा, अगर 4-5 आदमी मिलकर पार्टनरशिप के साथ आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जो है अपना इनकम जो होगा वो शेयर करना पड़ेगा। अगर 10 लाख का कंपनी आपका बिजनेस करती है साल भर तो आपको 10 लाख जो होगा वो चारों पार्टनर के साथ मिलकर शेयर करना पड़ेगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी इनकम करी, अगर कंपनी 10 लाख उस साल आपकी इनकम कर रही है, अगर आपकी कंपनी उस साल 10 लाख टर्नओवर है, अगर आपका बिजनेस 10 साल का कर रहा है तो वहाँ पे जो भी वो सारे का सारा जो होगा वो क्या होगा, वो आप ही का होगा। डायरेक्ट इंसेंटिव आपको अपना जो है वो किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हैं प्रॉफिट। नेक्स्ट होता है सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे हम समझते हैं इस चीज को। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मतलब होता है कि जब आप कोई बिजनेस ऑन करते हैं, खोलते हैं, तो आपके दिमाग में ये चलता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। आपके अंदर में एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन कहा जाता है कि जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत जरूरी होता है। पार्टनरशिप में देखा गया कि इसमें सेटिस्फेक्शन कम होता है क्योंकि हर पार्टनर का अपना अलग अलग दिमाग होता है। कोई किसी का आइडिया कुछ होता है, किसी का आइडिया कुछ होता है। तो बात देखा जाता है कि पार्टनरशिप में जो है वो बार बार कभी कभी लैक ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट देखा जाता है या फिर कभी कभी क्लैश हो जाता है पार्टनरशिप के बीच में, तो कभी कभी पार्टनरशिप टूट भी जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट में, तो क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैंने पढ़ा है कि यहाँ पे ऑन कंट्रोल और मैनेज सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के हाथ में होता है। तो वहां से आदमी के दिमाग में आता है कि हम सोसाइटी के लिए जो है वो कुछ कर रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे हम सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट कहते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पे ईज ऑफ फॉर्मेशन, जो हमने देख ही लिया है। और इसके बाद डिसएडवांटेज पे हम आते हैं। ईज ऑफ फॉर्मेशन तो वही हो गया कि इजी हम फॉर्म कर सकते हैं, कोई ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता है, 30 दिन के अंदर बाद में रजिस्ट्रेशन करवाओ और आपको